So let's start with a new chapter, kinetic theory of gases. So up until now we have seen thermal properties of matter, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले we have seen the concept के heat होती क्या है, then we have seen what is the temperature, then we have seen the concept of thermometry, then we have seen कि जब heat flow होती है तब temperature बढ़ता है किसी body का तो क्या होता है, thermal expansion होता है. Then we have seen the concept कि heat जब flow होती है तो what kind of auditing of the heat is been doing, from heat is flowing from high temperature to low temperature. So how the energy accounting is being done, that the concept we have seen it in calorimetry. Then after that we have gone into the heat transfer. फिर हमने उसमें conduction देखा and the radiation देखा. ठीक है, हमने देखा radiation में you don't require a medium and the heat is been flowing like a electromagnetic waves. और conduction में you need a medium. ठीक है, up until now अभी तक जितना हम heat को लेके आ रहे थे, we were considering कि heat जो है it is a continuous flow of energy है अभी तक heat. ठीक है, but with that continuous flow of energy हमारे कुछ एक questions थे we could not able to answer, like macroscopic phenomena like pressure. We could not able to explain pressure with the continuous flow of energy. We could not able to explain the temperature with this continuous flow of energy. So there are certain macroscopic phenomena which could not be explained with the assumption that heat is a continuous flow of energy. Then it has been thought over कि जिस तरीके से हमारा Brownian movement होता है, like the dust particle has been moving in the air, why not in the gas, like the atoms are moving like that, doing the random motion in the air. तो वहीं से ये concept build up हुआ कि that gas consists of the atom and the atoms, the small particles or the atoms, and like this, and these atoms are been continuously doing a random motion, जिसकी वजह से ही हमारा ये जितने भी thermodynamic phenomena होते हैं, thermodynamic states होती हैं, we could able to define with this concept of kinetic theory of gases. ठीक है, तो now in this काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो पहला लेक्चर है हमारा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इंट्रोडक्शन से. क्या ज़रूरत पड़ गई हमारे को काइनेटिक थ्योरी डिफाइन करने की. अप टिल नाउ जब हीट फ्लो एज ए कंटिन्यूस एनर्जी हम लोग लेके चल रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, बिकॉज सम फिनोमेना वी कुड नॉट एबल टू डिफाइन. अब हम देखेंगे कि हाउ वी हैव रीच टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विथ ट्रांजिशन फ्रॉम हीट एज ए बल्क ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी टू द हीट एज ए chaotic dance of trillions of individual particle, like this individual particle, it's a dance of trillions of particle which has been doing. So with this, considering this, we could able to explain the macroscopic phenomena like temperature, pressure, all this phenomena, and we could able to explain. ठीक है, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि वी विल सी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल सी के एवोगैड्रो नंबर. जब आपको पता लग गया कि आपकी गैस इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं, तब उसको काउंट किस तरीके से किया जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू, बिकॉज आपको यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, यू हैव टू डू अ क्वांटिटेटिव वे में आपको प्रेजेंट करना है, आपको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है. तो फॉर दैट यू नीड कि उसकी मेजरमेंट किस तरीके से मेजर करेंगे आप इतने सारे एटम्स को. ठीक है, तो उसके लिए हमारा फिर आया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ आया, फ्रॉम वेयर वी कुड एबल टू काउंट द दिस माइक्रो पार्टिकल्स. ठीक है, माइक्रो हमारे जो एटम्स है वी कुड एबल टू काउंट देम. सो दिस एवोगैड्रो फिनोमेना इज गोइंग टू लिंक बिटवीन योर माइक्रो से मैक्रो. ठीक है, लिंक्स बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स से आपका नंबर ऑफ एटम से द ग्राम एंड द लीटर्स के रिलेशनशिप इट इज़ गोइंग टू शो फ्रॉम द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, फिर हमने देखा इन ऑर्डर टू डिफाइन दैट मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना हमारे को कुछ एक एजम्पशंस की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, एंड वी विल कंसीडर अभी का जो हमारा फॉर दिस लेवल, फॉर द JEE लेवल वी नीड टू स्टडी द ideal gases only. So we are going to take the assumption from the ideal gases, but when you go in the university and all, there you will study because these are the ideal situation which does not exist, but a real situation को समझने के लिए पहले आपको ideal situation समझनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम अभी JEE के लेवल के JEE के स्कोप में हम ideal situation पढ़ेंगे, और ideal gas की situation से what are the assumption that we are going to take, those assumption we are going to study. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द प्रेशर इन द आइडियल गैस, किस तरीके से हमारा प्रेशर आता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल सी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. तो ये जो हमारे पार्टिकल्स वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो विल फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस वेलोसिटीज़. इसमें वेलोसिटीज़ हम देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखेंगे, एंड द एवरेज वेलोसिटी देखेंगे पार्टिकल्स की. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट वेलोसिटीज़ हम लोग स्टडी करेंगे. फिर हम देखेंगे इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस लॉस देखेंगे. गैस लॉस वी आर गोइंग टू डिराइव इट फ्रॉम द
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो गैस लॉज का जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. गैस लॉ में हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एंड देन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड योर एवोगैड्रो लॉ. These 6 laws that we are going to see, and we are going to see, then finally we are going to conclude with the ideal gas equation. ठीक है, PV is equal to nRT, that ideal gas equation that we are going to conclude. ठीक है, फिर alongside we'll do some of the numericals related with the concepts, right? So this is the scope of today's lecture. Now let us continue. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले हमारे पास आया प्रेशर. तो हमें फील हो रहा था कि हमारा द गैस इज क्रिएटिंग ए प्रेशर, बट एनी बिकॉज अभी तक मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर. बट हम लोगों ने देखा यहाँ पे इन द व्हेनेवर देयर इज अ गैस इन द कंटेनर, प्रेशर तो हो रहा है, प्रेशर तो इंट्यूशन आ रही है, बट वो प्रेशर फ्रॉम द इनविजिबल प्रेशर इज विदाउट एनी विजिबल फोर्स. कोई फोर्स तो दिख नहीं रही थी. देन हाउ कम द प्रेशर इज बिन कमिंग अप हियर. ठीक है, सो हाउ कम दिस गैस इज पुशिंग द वॉल. This how was the first point. This is the first point from where we the kinetic theory of gases का जो build-up है वो start हुआ था. ठीक है, there is no macro motion. आपका जो गैस है that आप सिलेंडर के कंटेनर के अंदर गैस है, तो कंटेनर बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा उस पर, nothing is moving. Then from where the gas come from? Mechanics has no answer for this. Then kinetic theory of the gases is the answer for this प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट है कि टी, व्हाट इज़ टी फिजिकली. टी हमने देख लिया, टेम्परेचर होता है, हॉटनेस डिफाइन करता है, बट एक्चुअली व्हाट इज़ टी. ठीक है, हमने माइक्रो लेवल व्हाट इज़ दिस हॉटनेस. तो दैट ऑल्सो द आंसर, द एक्सप्लेनेशन इज बिन गिवन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. एंड वाई हीटिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वाई हीटिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर. अभी तक हम लोग विद द इंट्यूशन वी आर टेकिंग इट कि हीट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, सो विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक स्मूथ फ्लो समझ में आ जाएगा. जैसे आप इसको एज गैस को एज कंसिस्ट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल लेने लगोगे ना, देन यू विल सी अ स्मूथ फ्लो. जिस तरीके से आप हीटिंग करोगे तो हीटिंग से यू विल सी हाउ द प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर. हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, अभी तो जस्ट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ कि काइनेटिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ गई. ठीक है, फिर हमने देखा कि ये दोनों वी कुड नॉट एबल टू डिफाइन द प्रेशर, वी कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि वाई द प्रेशर एग्जिस्ट, एंड वी कुड नॉट एबल टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली इज टी. तो फिर हमने देखा कि रैंडम मोशन, हमने डस्ट पार्टिकल्स और रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हुआ था. तो दिस टाइनी पार्टिकल मूविंग रैंडमली एंड द मैटर इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है, मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल. दिस वॉज द हिंट कि मे बी द गैस इज मेड अप ऑफ मूविंग पार्टिकल, मे बी द गैस ऑल्सो made up of moving particle. So what if the gas, so then it was thought कि gas, what if the gas pressure is nothing but the Newton's laws applied to the tiny moving particle, and they are hitting the wall and delivering the force. ठीक है, so gas, after this it was concluded that from the kinetic theory gas is not a continuous fluid but a billion of tiny molecules moving randomly and colliding with the wall, and that collision, and because of that collision the momentum change is going to happen. Because of that momentum change per unit time is going to give you the force, and that force is going to create the pressure on the walls. ठीक है, so this all macro properties of the gas is derived from the microscopic motion of your particles. Like for instance, आपका जो प्रेशर है that is nothing but the momentum transfer during the collision of this particle with the wall. टेम्परेचर क्या है, it is nothing but the average kinetic energy of all your molecules. हीट क्या है, it is nothing but the change in the molecular motion. Like जो fast vibrating molecule है that is going to collide with, that is going to interact with the slow moving particle, then they are going to exchange the energy. That is what the heat, that's how the heat, the change in the molecular motion. Volume क्या है, that space that the motion is been requiring. ये जो space है हमारा, that space in this space how this particles are moving, that is what the volume. ठीक है, so these are all the macro concept, and to define all this macro concept we need the kinetic theory of gases, that the gas is not continuous, it consists of a small particles that is moving randomly in moving randomly, doing the motion in the given space. अब इसमें एजम्पशन क्या थी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, एजम्पशन क्या लेते हैं हम टू मेक अप द फिजिकल मॉडल, दैट द मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इनका एक कोई प्रिस्क्राइब मोशन नहीं है, दे हैव बीन डूइंग रैंडम मोशन. ठीक है, दैट एक्सप्लेन द आइसोट्रोपिक प्रेशर, दैट एक्सप्लेन के वाई द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक के आपके कंटेनर में एक जगह प्रेशर ज़्यादा और एक जगह प्रेशर कम है. ठीक है, दैट एक्सप्लेन द आइसोट्रोपिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन. देन देयर द जो भी कोलिजन हो रहा है आपका वॉल के साथ, ये जितने भी ये आपका कोलिजन देख रहे हो आप, जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, दीज आर ऑल द इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, एंड द एनर्जी will be conserved. ठीक है, energies, the particles are not losing the energy.
पार्टिकल्स का जो साइज़ है दीज आर द नेग्लिजिबल साइज, ठीक है, दैट टू मैच द आइडियल गैस बिहेवियर. दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी. ये एजम्पशन हम लोग अभी आगे भी देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू सी द आइडियल गैस के एजम्पशंस में भी ये आएगा कि ऑल दिस एजम्पशन वी आर गोइंग टू कवर अप इन द आइडियल गैस के एजम्पशन में भी. जो आपके मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है, जो पार्टिकल्स का साइज़ है, दैट इज़ नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ योर कंटेनर, ठीक है. देन देर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द दिस पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बीच में आपस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है. तो दीज आर द एजम्पशन. इन एजम्पशन के बेसिस पे वी कुड एबल टू डिफाइन द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस माइक्रो पार्टिकल्स रैंडम मोशन, ठीक है. नाउ जो the gas consists of we have now reached to a point that gas is not a continuous flow. Gases consist of the atoms, and this atoms exist the pressure. These atoms, whenever they are doing the random motion, they are colliding with the wall and they are exerting a pressures on the wall, ठीक है. All this pressure, volume and temperature is the consequence of this motion of these atoms. ये जो एटम हमारे मूव करेंगे, इन एटम्स के ही मूव करने से ही you will get this pressure भी आपको उसी से मिलेगा, वॉल्यूम भी आपको उसी से मिलता है, टेम्परेचर भी. वॉल्यूम क्या होता है? फ्रीडम द एटम टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर, ठीक है. तो वॉल्यूम क्या डिफाइन होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ फ्रीडम ऑफ एन एटम टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर. प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द एटम विद द कंटेनर वॉल. टेम्परेचर क्या होता है? ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, कितना फास्ट आपके एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ योर दीज आर द इंट्रोडक्शन फॉर योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. हम देखते हैं कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है. अब आपने डिफाइन तो कर दिया, नंबर ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, बट उनको काउंट किस तरीके से किया जाएगा, दैट काउंटिंग जो कॉन्सेप्ट दिया गया, फिर दैट हैज़ बीन गिवन बाय द एवोगैड्रो थ्रू हिज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है. तो द फर्स्ट स्टेप टू मेजर द अमाउंट ऑफ द गैस इन अ सैंपल, इट इज़ बीन गिवन बाय द एवोगैड्रो नंबर. सो व्हेन यू आर गोइंग टू काउंट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, it does not sense to count each and every atom, but instead of that it sense to count them in terms of mole, ठीक है. that is the SI unit of the SI unit, ठीक है. we are going to measure the size in terms of the moles, and that was the SI unit, ठीक है. तो एवोगैड्रो नंबर किस तरीके से आया? एवोगैड्रो suggests that all the gases occupy same volume अंडर द सेम कंडीशन, जिसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है. दिस यू गेट इट फ्रॉम PV इजिकल टू NRT से भी ले सकते हो. दिस जब हम एवोगैड्रो लॉ इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर हम देखेंगे तब उसमें हम डिराइव भी करेंगे इस चीज़ को. बट अभी के लिए जितनी भी गैसेस हैं आपकी, दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन जहाँ पे उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है. देन इन दैट केस इट कंसिस्ट द सेम नंबर ऑफ योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये N होगा, दैट कंसिस्ट द सेम नंबर ऑफ योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज नथिंग बट, इन 1 मोल ऑफ ए substance for any 1 mole of any substance constraint, NA number of this is NA number of elementary units. This NA is nothing but your Avogadro number, that is consist of your atoms and molecules. NA की जो वैल्यू होती है that is your 6.023 into 10 to the power 23. तो 1 मोल में आपके this many individual particles होंगे जो कि हमके atoms और molecules हैं, ठीक है. मोलर मास जो होता है, मोलर मास, इफ़ यू हैव टू डिफाइन द मोलर मास इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ ऑल योर मॉलिक्यूल्स. सिंगल पार्टिकल, अगर मैं सिंगल पार्टिकल का मास अगर मैं m ले लूँ तो m इंटू अगर मैं एवोगैड्रो नंबर ले लूँ तो मेरे को पूरे एंटिटी का मास मिल जाएगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मोलर मास. मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, जो कि मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. दैट इज गोइंग टू गिव मी द मोलर मास, ठीक है. दिस इज माई मोलर मास. So this is the individual and this is the mole one, ठीक है. this जैसे if you see one dozen में 12 बनाना होते हैं, तो same way तो 12 is my this individual 1 1 1 1 1 और dozen is like के mole, ठीक है. तो mole here is my this much is the quantity for the mole, because इतने सारे atoms, इतने सारे हमारी individual particles होते हैं, तो we can't go and count them on a individual level. So that's why we have defined the unit mole for this, ठीक है. So mole Avogadro number क्या है? It connects your microscopic word. In the microscopic word you're dealing with atoms and molecule. 2 are macroscopic word where you are measuring where we are measuring the substance in terms of gram and liters.
ठीक है। एक और स्मॉल हम रिलेशन देख लेते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हम आर पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द मोल्स, ये मोल्स के साथ रिलेट होता है। और एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज़ रिलेटेड विद द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ये हो गया, मोल ये हो गया, ठीक है। तो अगर हमारी जब भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, जब भी हम मोल्स के बारे में बात करेंगे तो हम आर होता है हमारा, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आर इज नथिंग बट इक्वल टू योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। दैट इज योर that is the relationship. Universal gas constant for individual molecules are Boltzmann constant and total number of molecules is Na. So this is a relationship, R is equal to Na into Kb, ठीक है। Now this is अगर ये number just on the paper it's been written 6.0323 into 10 to the power 23, एक number just written है, तो इसका एक intuition देने के लिए कि कितना बड़ा number है, I'll just give you an example कि if you receive 1 mole of dollar, ठीक है, 1 mole of dollar on the day you are born, अगर आपको 1 mole of dollar on the day you are born मिल जाए and every day you are spending, मतलब 1 mole of dollar means इतने mole of dollar, इतना डॉलर आपको मिल जाए on the day you are born and you are spending, if you are spending $1 billion per second, ठीक है। $1 बिलियन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ इस टाइम हमारा डॉलर के हिसाब, डॉलर के मुकाबले रुपी चल रहा है, तो 9500 करोड़ पर सेकेंड अगर आप स्पेंड करोगे, तब भी आफ्टर 100 ईयर्स आप केवल आपके 100 ईयर्स के बाद भी 99.99% आपके पास पैसा बचेगा, ठीक है। तो दैट मच लार्ज इज दिस नंबर, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू द इंट्यूशन वन मोर टाइम कि ऑन योर बर्थ इफ आई विल गिव यू 1 mole of money and if you started spending 1 billion of that per second, ठीक है, तब भी आपके 100 ईयर्स के बाद भी 99.99% आपके पास तब भी बचा होगा, ठीक है। आफ्टर 100 ईयर ऑल्सो यू विल बी हैविंग 99.99% स्टिल बीन लेफ्ट ओवर विद यू। हाउ मच यू हैव स्पेंड, 0.01% यू वुड हैव स्पेंड ओनली। सो दिस मच इज़ द लार्ज, दिस मच इज़ दिस नंबर, ठीक है, इतना लार्ज ये नंबर है, राइट। अब हम देखते हैं एजम्पशन, बिकॉज वी नाउ हैव टू मूव टूवर्ड्स डिफाइन द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। अब हम अब हम प्रेशर, वेलोसिटी को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमारे को जो गैस को एक प्रेशर का जब हम डिराइव करेंगे तो we need to have certain assumption to derive to reach to the conclusion for the pressure. तो उस assumptions को we are going to note it down for the ideal gases कि these are our ये हमारी certain assumptions हैं whenever we are considering the ideal gases। अगर इस assumption को fulfill नहीं कर पाएगा then we have to switch it over to the real gas equations of the real gas situations जाना पड़ेगा। But ideal gas means it is not in the real life में ये नहीं होती है, but just किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने से पहले उसका आइडियलाइज मॉडल पढ़ा जाता है, फिर उसको रियल मॉडल पढ़ा जाता है। तो रियल मॉडल आपका इन द यूनिवर्सिटी फिजिक्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी यू विल स्टडी इट देयर, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है हमारी आइडियल गैसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ योर गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज योर स्पीड, मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी स्पीड, जो कि अभी हम निकालेंगे, स्पीड, मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। नाउ आइडियल गैस जो हमारा दैट इज कलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें एजम्पशन क्या क्या लेके चल रहे हैं हम लोग। पहली एजम्पशन है एवरी गैस इज के जो पार्टिकल हैं दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एंड देर इज अ नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। सो द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड देर इज अ नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सेकेंड इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर गैस, ठीक है। अपने सेम गैस के आइडेंटिकल होंगे बट डिफरेंट फ्रॉम द अदर गैस। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक लाइक अ पॉइंट मास। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द कंपेरिजन विद द गैस, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा आपका मॉलिक्यूल का दैट शुड बी नेग्लिजिबल कंपेरिजन विद योर गैस, ठीक है। तो इट शुड बी विद इन 0.01% के अंदर होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा देन यू कैन नॉट अप्लाई द आइडियल गैस सिचुएशन, आइडियल गैस इक्वेशंस नहीं लगा सकते आप।
डेंसिटी होगी आपकी कांस्टेंट होगी एट ऑल द पॉइंट्स इन द कंटेनर। ये नहीं है आपकी गैस का अगर मोशन रैंडम नहीं हो रहा तो एक जगह ज़्यादा डेंसिटी हो जाए, एक जगह कम डेंसिटी हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इट इज़ एन आइसोट्रॉपिक कंसिडरेशन वी आर टेकिंग, सो दैट्स वाई द डेंसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इन द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ओबे करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एज होल एंड द पार्टिकल्स एंड द मोशन आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब कि मोशन के पास कोई एक डिजायर्ड डायरेक्शन नहीं है, इट विल गो रैंडम इन एनी डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक मेरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा, नहीं ऐसा नहीं है, रैंडमली इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो मोशन एज ए होल इज आइसोट्रॉपिक, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव इन ऑल पॉसिबल वेलोसिटी एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। Time spent in the collision is negligible in comparison with between the two successive collision। ठीक है, अगर when the molecules when the molecules are colliding, ठीक है, between दो successive collision के बीच में जो collision का time है, जो actual collision का time है, that is negligible we are taking। ठीक है, and a number of collision per unit volume remain constant। So no attractive and the repulsive force between the molecules। ठीक है, and the molecules collide with the walls of container, momentum changes and that is the reason for your pressure। ठीक है, so these are the assumption that we are considering for the ideal gases। ठीक है, so इसमें अभी हम ये वाले assumption के ऊपर we are going to see one question by the end of this lecture कि in that question it has been asked कि आपको condition दी होगी and in that condition you have been asked whether it is suggestible to consider the gas as an ideal gas or not। ठीक है, तो हम देखेंगे ये। Now we'll derive the pressure of an ideal gas। अब pressure of an ideal gas derive करते हैं। तो प्रेशर हमने देखा था, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स ओवर एरिया होता है आपका। ठीक है, फोर्स क्या होती है आपकी, दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम। ठीक है, तो व्हेन द पार्टिकल, आपका जो पार्टिकल है व्हेन इट इज मूविंग, ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग, सपोज इट इज, जो पार्टिकल के साथ पास होती है वेलोसिटी इज माई, दिस इज माई पार्टिकल वेलोसिटी वी एंड इट इज इन ऑल डायरेक्शन, वी एक्स वी वाई वी जेड एंड दे आर इक्वल। ठीक है, तीनों इक्वल होंगी, तो आई कैन राइट इट डाउन वी एक्स, आई कैन राइट इट डाउन दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू वी बाई 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई कैन राइट इट डाउन लाइक दैट, और वी को आई कैन राइट इट डाउन 3vx², और सॉरी वी स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन 3vx², 3y², 3vz², बिकॉज ये तीनों मेरी सेम रहती है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द मोशन इज अ रैंडम मोशन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स, और इसके साथ कोलाइड करके इलास्टिक कोलिजन है, देन अगेन इट इज मूविंग विद vx वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इस पर, दैट इज -2mvx। ठीक है, बिकॉज इट इज ये डायरेक्शन है एंड देन इट गॉट चेंज द डायरेक्शन, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये वाली नेगेटिव लेऊंगा मैं, ये, और अगर मैं ये वाली साइड, ये हम x और y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो ये वाली साइड नेगेटिव हो गई, तो आपकी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कम्स आउट टू बी -2mvx। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंटम ऑन द बॉल, और बॉल के ऊपर कितनी मोमेंटम हो रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज 2mvx। ठीक है, नाउ आफ्टर रिबाउंडिंग, ये रिबाउंड करने के बाद द मॉलिक्यूल विल ट्रैवल अप टू दिस। ठीक है, यहाँ तक ट्रैवल करेगा, द मॉलिक्यूल विल ट्रैवल to the area A2 with -vx and collide again and rebound again with vx। यहाँ से फिर से rebound होगा and come back to A2। ठीक है, now the delta t, कितना टाइम है इसको, how much is that, this delta t is the time that is the distance between the two successive collision। यहाँ से कोलाइड करके ये इधर गया और फिर यहाँ से वापस आया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा इसको, द टाइम विल बी नथिंग बट टोटल डिस्टेंस इसका ये है एंड द वेलोसिटी इज माई vx। ठीक है, तो दैट इज द टाइम इट टेक्स कि यहाँ से कोलाइड किया, इधर गया, यहाँ से कोलाइड किया, फिर इधर आया और फिर यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच में टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2l डिवाइडेड बाई vx इज द टोटल, दैट इज द टाइम। ठीक है, दैट इज द टोटल टाइम फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन। एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने, इफ हैव टू फाइंड आउट द कोलिजन फ्रिक्वेंसी, अगर मेरे को निकालनी है कोलिजन फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1/Δt कर दूंगा एंड दैट इज नथिंग बट vx/2l, तो दैट इज योर कोलिजन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दैट इज योर कोलिजन फ्रिक्वेंसी vx/2l, दैट इज कोलिजन फ्रिक्वेंसी, ये हमारा Δt आ गया। नाउ डेल्टा टी आपके पास आ गया, डेल्टा पी आपको पता है, तो फोर्स आ जाएगी आपके पास, फोर्स इज नथिंग बट योर डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दैट इज योर फोर्स। अब यू विल पुट दिस वैल्यू 2mvx। ठीक है, 2mvx डिवाइडेड बाई 2l ओवर vx। ठीक है, 2l ओवर vx, दैट इज अ डेल्टा टी। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा mvx² डिवाइडेड बाई l। सो दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, दैट इज mvx² बाई l। नाउ दिस फोर्स इज देयर ऑन द एरिया A1। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, अभी तो ये एक मॉलिक्यूल की वजह से है, नाउ वी आर हैविंग ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो उनकी वजह से फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट इज force will be, if you are having n number of molecules then the force will be nm vx² by l. ठीक है, तो then it is the force by
n आ जाएगा व्हेन यू आर हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n m डिवाइडेड बाय ये m वी एक्स स्क्वायर बाय एल तो रहेगा, इसके साथ n और आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके n हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आपकी तो यहाँ पे इसको सो यहाँ पे इसको फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स वी कैन राइट इट डाउन कि हर मॉलिक्यूल की वी एक्स स्क्वायर इस डायरेक्शन में स्पीड है, तो वील एड अप ऑल दो स्पीड Vx1 Vx2 Vx2 Vx3 Vx4 Vx5, बट ये सारी Vx इन सबकी वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में सेम है, Vx1 इज इक्वल टू Vx2 इज इक्वल टू Vx3, तो वी कैन राइट इट डाउन Vx स्क्वायर का मीन इंटू नंबर ऑफ molecules into m by l, ठीक है। तो दिस टर्म इज नथिंग बट दैट इज योर मीन स्क्वायर एक्स कंपोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी, ठीक है, नॉट रूट मीन स्क्वायर, रूट होता तो यहाँ पे रूट आ जाता, तो रूट नहीं है, दैट इज मीन स्क्वायर, दैट इज मीन ऑफ योर एक्स डायरेक्शन में जितनी है उसका स्क्वायर, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे we had this Vx1 Vx2 Vx3 these are not equal, ठीक है, these are not equal, but we are taking the average of this velocity for all the particles, we are doing the averaging here, ठीक है। ये हमारा हो गया n पार्टिकल्स अगर मेरे को लाइट कर रहे हैं तो n पार्टिकल्स की दिस इज माय फोर्स, ठीक है, फॉर ऑल द n पार्टिकल्स। अब मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को आई हैव टेकन आउट माय एवरेज, इसका एवरेज ले रहे हैं, तो इसका एवरेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू द एवरेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी मीन स्क्वायर, ठीक है, इसका मीन स्क्वायर लेके एवरेज किया हमने इनटू n हो गए जितने नंबर ऑफ मेरे पार्टिकल्स हो गए उनके, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन फॉर द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आ गई हमारी n ml डिवाइड बाय, और ये हो गया मेरा मीन स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ योर एक्स कंपोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी, राइट। अब प्रेशर क्या हो गया आपका, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, फोर्स हमारी आ गई एम एन एल वी एक्स स्क्वायर दैट इज मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। नाउ एम एन हेयर ए इंटू एल क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया एम एन डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू दैट इज योर एवरेज molecule mean square velocity, ठीक है, that is not root, it is just the average molecule mean square velocity, ठीक है, that is equal to v square is equal to vx square plus vy square plus vz square। और इसको now vx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, ये तो हमारी एक्स डायरेक्शन में आ गई, तो अगर मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो हमारी क्या होती थी, वी स्क्वायर जो होती थी दैट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होती थी, और ये तीनों इक्वल होती थी, तो वी कैन राइट इट डाउन वी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, वी मीन स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, वी मीन स्क्वायर डिवाइड बाय 3। नाउ वी पुट द वैल्यू हियर, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये इसकी जगह हो जाएगा वी मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3 एम एन स्क्वायर बाय वॉल्यूम इंटू मीन स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट आपकी वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। वी आर एम एस क्या होती है, इसका रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे वी आर एम एस जो होती है ये होगी, ठीक है, ये यहाँ पे दिस शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो वी आर एम एस विल बी दिस, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी आर एम एस की वैल्यू, वी पुट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस वी पुट द वी आर एम एस, तो हमारे पास इसको वॉल्यूम को अगर मैं इधर की साइड ले जाऊँ तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन, ठीक है। तो दिस रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज टू डिफाइन द टू डिड्यूस और गैस लॉस को भी डिड्यूस करने के लिए विल यूज़ दिस रिलेशन। तो ये हमारी प्रेशर की इक्वेशन आ गई, प्रेशर आ गया हमारा 1/3 एम एन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। नाउ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एम एन डिवाइडेड बाय वी इंटू टी, बिकॉज आपकी वी आर एम एस क्या होती है, दैट इज अभी हम देखेंगे वी आर एम एस आपकी वेलोसिटी जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली आपका वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ योर पार्टिकल्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रेशर and the pressure is same for all the phases, जितने भी आपके फेस होंगे at every place the pressure will be same because isotropic condition and the random motion that we are considering, तो particle is not having any defined motion, random motion है, so that's why on all the phases we are having the same pressure, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया pressure is directly proportional to your temperature because m, n और v are constant, so if v and t are constant, अगर आपका v और t is constant then pressure is directly proportional to your m into n, ठीक है। that means m is the mass of single molecule, अगर आपका mass of single molecule बढ़ जाए, ठीक है, then mass of single molecule is going to get increase, or your number of
इफ़ योर दैट इज, या तो आपका m बढ़ जाए मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, या फिर आपका n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू इंक्रीज, देन द नंबर ऑफ कोलिजन आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रेशर। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर हमारे देखें ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू n। ठीक है, तो प्रेशर इज या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, अगर मास ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफर करेगा, तो या तो तब प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ जाएंगे तो कोलिजन बढ़ेंगे वॉल के साथ। ठीक है, देन ऑल्सो द प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। देन द थिंग इज इफ m एंड t इज कांस्टेंट, अगर ये m और t कांस्टेंट कर दें हम, तो देन योर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा तो कोलिजन पर सेकंड इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो छोटे से एरिया में ना इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन पर सेकंड इज गोइंग टू गेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव डिक्रीज बिटवीन द वॉल। ठीक है, पहले प्रेशर ये था और इसके अंदर अगर दो मॉलिक्यूल है, अब इतना सा छोटा प्रेशर कर दिया और ये दो मॉलिक्यूल होंगे, तो देन ऑब्वियसली मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो आप। ठीक है, तो अगर इतने बड़े एरिया में इतने बड़े वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर यही सारे मॉलिक्यूल्स अगर मैं छोटे एरिया में डाल दूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। इससे में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, देन योर प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होगा। देन अगर आपका मास और m एंड v इज कांस्टेंट, अगर आपका मास और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपका मास दिस मास and your volume is constant, then pressure is directly proportional to VRMS square, and VRMS is nothing but that is directly proportional to T, तो आपका pressure is directly proportional to your temperature। ठीक है, आपका temperature बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगी, that means molecule move faster, molecule fast move करेंगे तो they are going to collide with greater momentum। ठीक है, because velocity आ जाएगी, greater momentum से collide करेंगे तो pressure is going to get increase, right? ठीक है, right, we'll move on to the next topic, which is we are going to study the, अब हमने प्रेशर देख लिया, now we are going to study the various speed of gas molecules। एक तो हमने स्पीड देख ली VRMS, that is रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन्स अगर आपके पास V1 V2 है, दो वेलोसिटी है, अब इसका रूट मीन स्क्वायर लेना है तो पहले तो आपको इसका मीन लो, रूट मीन स्क्वायर, पहले तो इसको स्क्वायर करो, V1 स्क्वायर प्लस V2, पहले तो इसका अगर आपके पास वेलोसिटी है V1 V2 और V3 तीन वेलोसिटी है। ठीक है, अगर इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो पहले इसका स्क्वायर करो, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और V3 स्क्वायर। अब इसका मीन ले लो, मीन ले लिया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर का डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो गया आपका मीन स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या लेना है, रूट, तो रूट डाल दिया इसके ऊपर, तो दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n, तो विल राइट इट डाउन, दिस इज आवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमने देखा था यहाँ पे प्रेशर वाली टर्म में हमारा आया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज 1/3 इंटू, यहाँ पे हमारा था m इंटू n, मास को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी थी, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डेंसिटी इंटू n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका डेंसिटी फॉर अ सिंगल, अगर एक मॉलिक्यूल है आपका तो फॉर अ सिंगल वन, दैट इज here n will be there, तो 1/3 डेंसिटी इंटू n VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर ए सिंगल अगर सो यहाँ पे मास इंटू दिस इज n, अगर ये हमारा Na है तो इफ़ यू आर हैविंग दिस this is my mass of single molecule, number of molecules, it is nothing but your molar mass over volume is nothing but we can define it as density, तो we can write it down as, इसको हम लिख सकते हैं that is P is equal to 1/3 density into VRMS square। ठीक है, so that is what we have done। यहाँ पे हमने वही किया है, 1/3 इसको चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो इट कम्स आउट टू प्रेशर कम्स आउट टू इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो VRMS यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज √3 P बाई डेंसिटी, √3 P बाई रो। अब नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं, रो को वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज वी हैव सीन दिस, अपने ऑलरेडी रो को हमने क्या चेंज किया था, वी हैव चेंज इट फ्रॉम मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वी कैन पुट इट वैल्यू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड हेयर PV को वी कैन रेट चेंज इट बाय nRT। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट दिस VRMS
we'll rearrange this, and we have got VRMS as 3p by rho. Rho को we can write it down, that is mass over mass of gas divided by volume. Volume ऊपर चला जाएगा. Now this PV, you can write it down PV as nRT, ठीक है, and your here you can write down PV की जगह nRT लिख दो, और mass of gas, मोल क्या होता है आपका, मोल इज नथिंग बट मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, दैट इज़ योर मोल ऑल्सो. तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको हेयर इसको हमने लिख दिया PV इज इक्वल टू PV की जगह nRT कर दिया, ठीक है, nRT, और दिस मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय n इज नथिंग बट योर मोलर मास, ठीक है, बिकॉज n इज नथिंग बट योर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय योर मोलर मास, ठीक है. तो वी कैन राइट इट डाउन मास ऑफ गैस एज n इंटू एम, ठीक है, इसको n इंटू एम लिख दो, n इंटू एम, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नीचे बचेगा बस m, ठीक है. तो 3RT बाई एम ऑल्सो वी कैन राइट, एंड लास्टली वी कैन राइट इट डाउन R को वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज एवोगैड्रो नंबर इंटू, नहीं, इसको वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर, और मोलर मास को भी ऑल्सो वी कैन राइट इट डाउन एन एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगी 3kT बाई एम, ठीक है. सो दिस इज दीज आर ऑल द वेज विद विच यू कैन डिफाइन योर VRMS, ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें तो इट इज़ VRMS हमने देखा था, विच इज़ मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ये वाली √3kT बाई एम. यहाँ पे जो m है दैट इज़ मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मोलर मास है, ठीक है, एंड दैट इज़ द मास ऑफ गैस, ठीक है. ये तीनों याद रखना है, दीज आर ऑल 3 डिफरेंट थिंग्स. दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज द मोलर मास, ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ द गैस, ठीक है. तो दीज आर ऑल 3 आर द डिफरेंट थिंग. यहाँ पे अगर VRMS हम देखेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका VRMS बढ़ेगा, एंड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T. मोलर मास बढ़ेगा तो दैट मीन्स आपका मास ऑफ गैस इज मोर, दैट मीन्स आपका VRMS विल गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है. तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. तो VRMS ऑफ हीलियम इज मोर देन 4 times मोर देन योर VRMS ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे मोलर मास ऑफ हीलियम जो होता है उसका 4 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है. तो दैट्स वाई जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी. तो दैट मीन्स हीलियम की आपकी स्पीड 4 times ऑफ देन योर ऑक्सीजन है, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, राइट. एंड VRMS डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस. वाई? बिकॉज यहाँ पे तो टर्म हमारी प्रेशर की है, बट यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों से साथ साथ बढ़ेंगे, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका डेंसिटी भी उतना ही सेम अमाउंट में बढ़ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो प्रेशर का RMS डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, ठीक है, इफ T इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा, ठीक है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा. प्रेशर बढ़ेगा आपका डेल्टा भी बढ़ेगा, तो VRMS विल बी कॉन्स्टेंट, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? द स्पीड विच पोजेसेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. फॉर इंस्टेंस आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स के पास 1 मीटर पर सेकेंड है, फिर 2 मॉलिक्यूल्स के पास 2 मीटर है, फिर 4 मॉलिक्यूल्स के पास 3 मीटर पर सेकेंड है, एक मॉलिक्यूल के पास 4 मीटर पर सेकेंड है, एक के पास 5 है, और 2 के पास 6 है. तो मोस्ट प्रोबेबल विल बी, जो ये मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज बीन बाय द 4 मॉलिक्यूल. सो 3 मीटर पर सेकेंड इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो अगर इसको निकालना होता है हम किस तरीके से निकालते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज, यहाँ पे आपका 3p बाई डेल्टा था, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल बी 2p बाई डेल्टा, ठीक है. तो दैट इज़ योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. एवरेज जो होती है आपकी, एवरेज इज V एवरेज इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, और उसका एवरेज लेना है. एंड डूइंग दिस एवरेज वील गेट एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू यहाँ पे आपका 8/π, ठीक है, जो 8/π P इंटू P बाई डेल्टा, ठीक है. सो दैट इज़ अ V एवरेज, राइट. सो इसमें हमारा VRMS आ गया 3p बाई डेल्टा, ठीक है. हमारा जो V मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा दैट इज़ योर 2p बाई डेल्टा, और आपका जो यहाँ से V एवरेज आ जाएगा दैट इज़ योर 8/π P बाई डेल्टा, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर इज ओनली चेंजिंग, राइट. So these are the various speed of our gas molecules. Now we'll see the derivation of gas laws from our kinetic theory of gases. अभी हमारा ठीक है, we'll try to finish it, ठीक है. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is at a given temperature means pressure of any given amount of the gas has been written by, अगर मैं velocity यहाँ पे नीचे थी तो इसको इधर ले, वॉल्यूम हमारा नीचे था यहाँ पे, तो इसको इधर लेगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर. और VRMS क्या है आपका? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इज VRMS स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बिकॉज VRMS हमने देखा था दैट इज नथिंग बट √3 kT बाई m है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर √T
रूट टी VRMS, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा टी के बराबर, ठीक है। सो अगर हम देखें तो PV इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, और आपका दैट इज VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और टी भी हमारा कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स आपका PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सेड दैट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, एंड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो, फ्रॉम दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने इसको डिड्यूस कर लिया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। PV इज इक्वल टू वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मास ओवर डेंसिटी, मास आपका कांस्टेंट है, तो P बाय डेंसिटी is also constant, P by density is also constant, तो P1 by ρ1 is equal to P2 by ρ2, तो this is also the Boyle's law। अगर इसका ग्राफ देखना है तो this is a graph, this is temperature is constant, तो it is a rectangular hyperbola, and if we have to see pressure PV with respect to either P or V, it is constant। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, गिवन प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, गिवन प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ए गिवन मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज व्हाट द चार्ल्स लॉ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से देखते हैं तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn RMS स्क्वायर हो गया था हमारा, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन जब हमने प्रेशर वाली इक्वेशन डिराइव करी थी, तो यहाँ से अगर आप देखोगे V प्रेशर कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर VRMS स्क्वायर, एंड VRMS इज नथिंग बट टेम्परेचर ओनली, सो दैट्स व्हाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, सो दैट इज व्हाट द चार्ल्स लॉ। तो प्रेशर इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो मास ओवर डेंसिटी, ठीक है, मास आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स ρ1 T1 इज इक्वल टू ρ2 T2, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन डिड्यूस चार्ल्स लॉ फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम थर्ड लॉ देखते हैं, दैट इज प्रेशर लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड Gay-Lussac's लॉ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, एंड द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, ठीक है, एट ए गिवन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्रेशर क्या था, प्रेशर वी हैव सीन PV इज इक्वल टू 1/3 nm R VRMS स्क्वायर, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ से आपका VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका जाएगा P1/T1 इज इक्वल P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। सो दैट इज योर Gay-Lussac's लॉ। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एट ए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स आपका ये VRMS भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दैट मीन्स आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी इक्वल हो गए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज ऑल्सो इक्वल, कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स वी हैव टू इक्वेट N1 इज इक्वल टू N2 एंड विच यू गॉट एट द एवोगैड्रो नंबर। तो नाउ वी हैव बीन गिवन इक्वल वॉल्यूम एंड द प्रेशर, तो विल इक्वेट, हमने from the pressure equation we got PV is equal to 1/3 m1 is the mass of gas 1, n1 is the number of molecules in the gas 1, and v1 is the velocity of molecules, ठीक है, of the gas 1। same way for the gas 2 is this, हमारे को pressure is same pressure and temperature दे रखा है, ठीक है, तो these both are equal, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस दे रखे हैं, तो दिस बोथ द टर्म्स आर इक्वल, ये दोनों टर्म इक्वल हो गई मेरी, तो वी कैन इक्वेट दिस विद दिस, ठीक है, इक्वेट करेंगे तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका m1 इंटू V1 स्क्वायर इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज दिस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे दिया ना सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टेम्परेचर इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो टेम्परेचर सेम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो भी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपका हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर हो गया, तो दैट मीन्स दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे आ गया n1 इज इक्वल टू n2, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एवोगैड्रो लॉ, contains the equal number of molecules for at same temperature, at same pressure, equal volume, we'll get the equal number of molecules, right। नेक्स्ट इज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या कहता है, मेरा दो गैसेस सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे अलाउड टू डिफ्यूज, अगर दो गैसेस हैं मेरे सेम प्रेशर पे और सेम टेम्परेचर पे, इफ दे यू आर अलाउड टू डिफ्यूज देम, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो नाउ रूट ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट VRMS वी नो दैट इज √3p/ρ, ठीक है, एंड योर रेट इज नथिंग बट दैट इज, अगर हम देखें R1/R2 इज इक्वल टू डेल्टा ρ2 ओवर
ρ1, ठीक है, बिकॉज ρ1 इट इज़ इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, तो ρ1 और ρ2 को वी कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हियर, दैट इज़ VRMS और वी कैन चेंज इट टू यहाँ पे इफ़ वी स्क्वायर इट तो हमारे पास आ जाएगा VRMS स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई VRMS स्क्वायर 2, दैट विल बी इक्वल टू ρ2 ओवर ρ1, ठीक है। तो ρ2 ओवर ρ1 को वी कैन राइट इट डाउन VRMS V1 RMS और V2 RMS, ठीक है। सो रेट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमारा वी हैव गॉट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज़ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ योर डेंसिटी, और फ्रॉम द डेंसिटी VRMS से हमने VRMS और डेंसिटी में हमारा रिलेशन है, दिस VRMS और डेंसिटी में हमारा रिलेशन है, तो दिस रिलेशन वी हैव यूज टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड VRMS। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है इफ़ यू ओनली पुट ए नाइट्रोजन इन द, इफ़ यू आर हैविंग ए 10 लीटर कंटेनर है आपके पास वॉल्यूम, अगर आपने नाइट्रोजन रखी है उसके अंदर, सो इट हिट्स द वॉल एंड क्रिएट्स 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये क्रिएट कर रहा है। नाउ यू टेक नाइट्रोजन आउट, नाउ यू पुट ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, उसी कंटेनर में आपने ऑक्सीजन डाल दिया, नाउ द सेम कंटेनर इट क्रिएट्स 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नाउ अगर आप दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि दे बोथ द गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बिहेव लाइक अ घोस्ट, के आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एंड दे विल क्रिएट देयर ओन प्रेशर, ठीक है। अपना जो सेम प्रेशर जब इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे थे, सेम वे दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रेशर, ठीक है। दे बिहेव लाइक अ घोस्ट टू वन अनदर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्टिल हिट द वॉल विद द सेम फ्रिक्वेंसी बिफोर, सो डज द ऑक्सीजन, ठीक है। आपस में इन दोनों में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, दे आर गोइंग टू हिट विद द सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो दैट मीन्स द pressure exerted by the mixture of several gases is equal to sum of the pressure exerted by each gas occupying the same volume at that as that mixes, ठीक है। मिक्सिंग से पहले जो प्रेशर था, that same pressure will be there when you mix them, ठीक है। सो डाल्टन लॉ हमारा क्या कहता है, टोटल प्रेशर विल बी P1 जो इनिशियल प्रेशर था, अगर मैं सेपरेट आउट रख रहा हूँ, P2 प्लस P3 प्लस P4, दिस इज आवर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल ओनली वर्क इन द आइडियल गैसेस, जहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। अगर इंट्रैक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लाइक इफ द गैसेस रिएक्ट लाइक अमोनिया एंड द HCl इफ यू आर पुटिंग इट, और इफ द प्रेशर इज सो हाई सो दैट द मॉलिक्यूल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द वेन डर वाल फोर्सेज, देन द घोस्ट एनालॉजी विल ब्रेक डाउन, दैट मीन्स दे विल नॉट लाइक ट्रीट ईच अदर दैट दे डोंट नो, दे विल स्टार्ट इंट्रैक्टिंग एंड द टोटल प्रेशर विल बी लेस देन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। रियल गैसेस में दैट दिस टोटल प्रेशर विल बी लेस देन दिस प्रेशर विल बी लेस देन द डाल्टन्स प्रेशर जो आ रहा है, और डाल्टन प्रेशर हमारा यहाँ पे हमारा द प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। Now we'll see clubbing of all this loss, we will see the equation of state or the ideal gas equation, ठीक है। From the experiment it has been seen when the 1 mole of sample of various gases, put it in a box of identical volume, सारी gases को हमने identical volume में डाला, and hold the gases at the same temperature, we have measured the pressure and this comes out to be same for all of them, ठीक है। At the lower densities the difference between the pressure will disappear, ठीक है। So from this we have deduced कि at low density all the real gases behave like an ideal gas and they obey the gas equation which is my PV is equal to nRT, ठीक है। PV is equal to nRT. So to describe the gas state of a gas, so equation of state क्या कहती है, to describe the state of a gas we are essentially taking the like a snapshot, आपने गैस तो मूव कर रही होगी, आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो टू डिफाइन दिस इज लाइक उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे इट इज़ डिफाइनिंग, तो यू आर टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ दैट फिजिकल सिचुएशन। इन फिजिक्स देर आर 4 मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट इज डिफाइनिंग द स्टेट, दैट थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स में हम लोग वी डिफाइन द स्टेट ऑफ ए गैस विथ 4 वेरिएबल्स। प्रेशर से उसको डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम उस टाइम कितना है उसका, टेम्परेचर कितना है, एंड अमाउंट इट इज़ कंटेनिंग द मास और द मोल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो PV इज इक्वल टू nRT है, यहाँ पे प्रेशर इज माई एब्सोल्यूट प्रेशर नॉट द गेज प्रेशर, V इज माई वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, एंड R इज माई बोल्ट्समैन, R इज माई गैस कॉन्स्टेंट, दैट इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एट लो डेंसिटी दिस लॉ होल्ड, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT लॉ होल्ड एट लो डेंसिटी, ऑल द at low density all your gases behave like a ideal gas, either in the single gas or the mixture of gases, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी एड अप।
दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज आर बाई एन ए. ठीक है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज बेसिकली व्हेन यू हैव टू लुक इनटू द वन सिंगल मॉलिक्यूल, और व्हेन यू हैव टू सी इनटू द मोल देन यू हैव टू लुक इनटू द गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप था गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एन ए. ठीक है, यू कैन पुट पी वी इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ आर यू कैन पुट एन बाई यू कैन पुट योर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, आर की जगह आपने डाल दिया के इंटू एन ए, और आपने एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह यू पुट एन ओवर एन ए. ठीक है, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम डिवाइडेड बाय योर एन ए. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, मोल्स इज नथिंग बट आपके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ठीक है, दैट इज एन डिवाइडेड बाय योर एन ए. ठीक है, दैट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ मोल्स. तो यू कैन राइट इट डाउन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाय एन ए. तो यहाँ से एन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पी वी इज इक्वल टू एन के टी इज अनदर वे टू राइट इट डाउन, एंड दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हेयर एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. जब आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, नॉट ऑन द मोल, देन हेयर इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज इफेक्टिव गैस कांस्टेंट फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल. ठीक है, आर जो था दैट इज गैस कांस्टेंट फॉर द मोल्स ऑफ मोल्स लाइक द मोल ऑफ योर quantity. Here we are taking for a single, when you are considering a single molecule, NKT. ठीक है, one mole of ideal gas at STP is 1 mole of ideal gas at STP. when you put the standard temperature और pressure डालोगे, standard temperature और pressure कितना होता है आपका, temperature will be 0 Kelvin, that is 0 degree Celsius 273 Kelvin, और pressure is 1 atmosphere. when you put this value आपके पास volume comes out to be equal to 22.4 liter by putting the value here. P की value डाल दो, T की value डाल दो, and 1 mole of a gas ये 1 डाल दो, और volume comes out to be equal to your 22.4 liter. ठीक है, सो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 22.4 लीटर. और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इसका वे ऑफ विजुलाइजिंग है कि आपका जो पीवी साइड है दैट शोज द एनर्जी साइड, और एनआरटी साइड है दैट शोज द थर्मल साइड. पीवी साइड थिंग्स पीवी एज द इंटरनल पुश द गैस इज हैविंग. इफ यू स्क्वीज द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो आपका प्रेशर मस्ट इंक्रीज टू कीप अप द बैलेंस. ठीक है, और एनआरटी ये है आपकी थर्मल साइड. थर्मल साइड क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो एनर्जी सप्लाई कर रही है. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी सप्लाई. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर or add the number of molecules, it is going to push PV to increase. ठीक है, the PV must increase, so it shows the energy side and it shows the thermal side, right? So this is all about our equation of state or the ideal gas equation, right? Now we'll see the questions. एक दो question है, we'll see them and then we'll wrap it up. So यहाँ पे ये है हमारा, we have 0.5 gram of hydrogen gas in a cubic chamber of side 3 सेंटीमीटर का साइड है मेरा क्यूबिक चेम्बर. ठीक है, क्यूबिक है मेरा, क्यूब है मेरा, 3 सेंटीमीटर साइड है इसकी ये. ठीक है, 3 सेंटीमीटर साइड है एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है यहाँ पे. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर और स्टैंडर्ड में वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस. यहाँ पे हमारा टेम्परेचर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 293 केल्विन हो जाता है हमारा, और प्रेशर इज़ ऑल्सो 1 ATM होता है यहाँ पे. और द गैस यहाँ पे देखते हैं, द गैस इन अ चेम्बर इज कंप्रेस्ड एंड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं टिल द प्रेशर इज नाउ दिस. मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, ये मेरी गैस है, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है क्यूब में. मैंने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस करना शुरू कर, मैंने कंप्रेस कर दिया 100 एटमॉस्फेयर. इज़ वन जस्टिफाइड एज्यूमिंग दैट द आइडियल गैस लॉ इज इन द फाइनल स्टेट. तो आइडियल गैस लॉ हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है, दैट मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम शुड बी मिनिमल, दैट इज़ 0.01%, 0.014% ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ योर कंटेनर होना चाहिए. 0.014 और 0.01% से कम होना चाहिए, देन वी विल अज्यूम इट्स एन आइडियल गैस. अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल माई मॉलिक्यूल्स इज मोर देन 0.01% आ जाएगा, मोर देन 0.01% आ जाएगा, मोर देन 0.01 आ जाएगा, देन वी विल से कि हमारा वी कैन नॉट फॉलो द आइडियल गैस. देन इन दैट केस हमारे बिकॉज इन दैट केस हमारे मॉलिक्यूल विल स्टार्ट इंट्रैक्टिंग एंड देयर विल बी अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगी. देन यू हैव टू कंसीडर रियल केस. ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है हमारा, इन एन आइडियल गैस it will works only when the actual space occupied by the molecules is tiny compared to the total volume of the container. The rule of thumb is if the volume of the
सो द रूल ऑफ थंब इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सॉरी हमने 0.01 ले रहे थे, तो दैट इज यर नॉट द परसेंटेज इज 0.1, ठीक है, 0.1%, ठीक है. इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन 0.1% ऑफ द कंटेनर देन द गैस इज आइडियल, ठीक है. अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा देन द गैस इज नॉट आइडियल. अब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर आई एम इंक्रीजिंग इट टू 100 एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीज इतना ना हो जाए कि ये वाला जो मेरा थंब रूल है इट इज़ गोइंग टू गेट वायलेटेड, ठीक है. So if you compress the gas too much, like 100 atmosphere here, the molecule gets so crowded and the physical size of the molecule will be comparable to the container size. तो हम इसमें ये देखते हैं कि whether it is getting compared with the container size, and if it's getting in comparison with the container size, then we cannot use the ideal gas. और हमारे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का दे रखा है एज एन स्फीयर 1, ठीक है. तो दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो गए, 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और हमारे पास कितना 1 मोल में कितना होता है, दैट इज़ मोलर मास, ठीक है. तो 1 मोलर मास में दैट इज़ 2 ग्राम में आपके एवोगैड्रो नंबर Na हो गए. हमारे पास ग्राम कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 में कितना हो जाएगा आपका Na एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5. तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिस मैनी नंबर ऑफ आर 1.5 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ माई हाइड्रोजन गैस के मेरे मॉलिक्यूल्स हो गए. अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सबका मेरे को वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूँगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब. आर मेरे को दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम. पुटिंग दिस वैल्यू, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आ गया 6.27 इंटू 10⁻⁻7. दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ माई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम निकालते हैं व्हेन द गैस हैज़ बीन कंप्रेस्ड, ठीक है. तो विल अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है. तो यहाँ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट इट डाउन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है. तो प्रेशर मेरे को इनिशियली इट्स बीन गिवन NTP, दैट इज माई 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है प्रेशर. वॉल्यूम मेरे को यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज इसका ये कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्यूब कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा. तो इनिशियल मेरे को प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल मेरे को प्रेशर दे रखा है 100, और यहाँ से मेरा वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग. तो हमने वही किया यहाँ पे, वॉल्यूम 2 निकाला, दैट इज़ 1, प्रेशर जो इनिशियल था एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP 1 इंटू दिस इज माई वॉल्यूम इनिशियल डिवाइडेड बाई प्रेशर फाइनल, ठीक है. तो ये मेरा प्रेशर वॉल्यूम फाइनल आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 2.7 इंटू 10⁻⁻7. नाउ यू विल सी ये दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ठीक है. तो आपका वॉल्यूम कंप्रेस होने के बाद इतना छोटा हो गया. तो इनिशियली सपोज फॉर इंस्टेंस आपका एक फुटबॉल स्टेडियम है, उसमें 2 लोग अगर भाग रहे हैं फुटबॉल स्टेडियम में, तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपस में इंडिपेंडेंटली भागते रहेंगे. अगर वही मैं करूँ 50 लोग एकदम से एक लिफ्ट में आ जाएं, तो दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग, ठीक है. तो दैट इज़ द रीज़न है, दैट इज़ द इंट्यूशन, दैट इज़ अ वे टू गिव यू एन इंट्यूशन कि किस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम कम होने की वजह से दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग, ठीक है. तो यहाँ पे जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ऑफ द कंटेनर, तो आपके मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी इंटरेक्टिंग. अब यहाँ पे देखो आपका ये कंटेनर का वॉल्यूम है, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर, दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस, एंड दैट इज एट 100 एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे देखो दिस इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद दिस, ठीक है. सो इन दैट केस द मॉलिक्यूल volume of your total molecule is comparable with your container size or the volume available, then in that case it will not show any ideal behavior. They will start interacting. We will have to apply the real gas equations, right? Now we'll see this final part. So यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, volume, a vessel is having the volume this much, contains a mixture of your hydrogen and helium at 47 degrees Celsius. ये टेम्परेचर दे रखा है, मिक्सचर योर वेसल आपको दे रखा है जिसका वॉल्यूम ये दे रखा है, कंटेन्स अ मिक्सचर, आपका हाइड्रोजन और हीलियम है उसमें एट 47 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रेशर इज दिस वन. तो टोटल प्रेशर आपका जो दे रखा है उसने, टोटल प्रेशर आपने ये दे रखा है P1 और प्लस P2, ठीक है. जो डाल्टन प्रेशर हो गया, ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल, दैट इज P1 प्लस P2 इज दिस मच. द मास ऑफ द मिक्सचर इज बिन गिवन दिस मच. तो मास ऑफ द मिक्सचर मीन्स अगर आपका हाइड्रोजन का मास m1 है, हीलियम का मास m2 है, तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज माई 10⁻⁻2. वी हैव टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द गिवन मिक्सचर. अब मेरे को निकालना है कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द गिवन मिक्सचर. तो m1 और m2 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो हमारे को पहली तो इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी m1 प्लस m2 इज इक्वल टू दिस. सेकंड इक्वेशन हम लोग ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है, हमारे को वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, नर माई टोटल प्रेशर, तो ठीक है. मिक्सचर का हमारा टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2, दैट इज योर प्रेशर. नाउ वी विल अप्लाई द गैस इक्वेशन, दैट इज टोटल प्रेशर इंटू V, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस N2, दोनों के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इंटू R इंटू T. और N1 और N2 में मेरा मास आता है, तो वी कैन राइट इट ऑन N1 इज नथिंग बट M1 डिवाइडेड बाई मोलर मास प्लस
m2 डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, इंटू RT, ठीक है। तो यहाँ से मेरा m1 m2 में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, और ये प्रेशर को आई कैन राइट इट डाउन P1 प्लस P2, ठीक है, P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मिक्सचर में हमारा टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ लगा दिया हमारा, तो प्रेशर आ गया P1 प्लस P2, तो वी कैन राइट डाउन P1 प्लस P2 इंटू V, N1 प्लस N2 को लिख दिया हमने M1 बाई M1, M1 इज़ योर मास ऑफ योर हाइड्रोजन, दैट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिखना है आपने, 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम में लिख रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे को किलोग्राम में ही दे रखा है, तो वी आर चेंजिंग इट इनटू किलोग्राम। तो हमारे यहाँ पे हो गया M1 डिवाइड बाय मास ऑफ योर हाइड्रोजन, M2 मास ऑफ योर हीलियम, ठीक है, इंटू R, और ये आपका टेम्परेचर हो गया 320, यू ऐड 273 इंटू इट, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर आ गया 320। नाउ इससे हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इसमें M1 एंड M2 है ओनली अननोन, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। नाउ आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है जिसमें M1 एंड M2 है, सॉल्विंग देम हमारे पास M1 आ जाएगा और M2 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज देयर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज our first lecture on our kinetic theory of gases. Now in the next lecture also we'll continue kinetic theory of gases, right? Next lecture में फिर से continue करेंगे, right? तो मिलते हैं next lecture में, all right, thank you.